جاری رہتا ہے. ان دنوں میں مومنین کی مصروفیات بہت رہتی ہیں. روزہ ہماری آج بھی سٹی میں بھی جلوس تھا تو میرے سامنے کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو وہاں پر بھی موجود تھے اور یہاں پر بھی موجود ہیں. تو مولا سے دعا ہے میری کہ مالک اس عزم کو ہمیشہ قائم رکھے. ایک خصوصی دعا میرے ذمہ لگائی ہے. میری ایک دوست ہے وہ انگلینڈ میں مقیم ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ آمین کہنا کہ مالک کائنات ان کی تمام پریشانیاں جہاں جہاں پر بھی جو دوست موجود ہیں جنہوں نے امتحانات دیے ہیں جنہوں نے پیا کے لیے اپلائی کیا ہے اور جو جس چیز کی جائز اور شرعی حاجت ہے مالک سب کی اپنی بات کریں. یہ عزاداری کا سلسلہ دوستو 1400 سال سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا. ہم نہ بھی رہے تو یہ جاری رہے گا کیونکہ وارث پردے میں بیٹھے ہیں. اور یہ جاری اس لیے ہے کہ یہ فقط اللہ کا جناب سیدہ سے وعدہ ہی نہیں بلکہ ارادہ بھی ہے. یہ عزاداری فقط اللہ کا وعدہ نہیں بلکہ ارادہ بھی ہے. یہ ہماری شرع حیات ہے اور ہم عزاداری میں شرکت کر کے عالم اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے, یزید کے ساتھ نہیں. یہ پیغام عالم اسلام کو پہنچتا ہے کیونکہ واقع کربلا کے بعد عملاً اگر دیکھا جائے, پریشان تو نہیں بیٹھے نا, اگر تحقیق کی جائے پریکٹیکل کیا جائے تو واقع کربلا کے بعد کوئی 73-72 فرقے نہیں ہیں, صرف 2 ہیں. یعنی واقع کربلا کے بعد صرف 2 فرقے سامنے آتے ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. ہمیں اس بات سے بھی کوئی کنسرن نہیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہے. موضوع میرا کچھ اور ہے, بس یہ 2 شبد نہیں چھوڑے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا اپنے آپ کو کچھ بھی کہے, کیونکہ مظلوم کربلا نے نہر فرات پر اپنے عباس کے بازو قلم کروا کے ایک علم عباس نصب کیا اور سب کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ اس علم کے سائے کے نیچے. اب جو علم کے سائے کے نیچے ہے اسے حسینی کہتے ہیں, جو باہر ہے اسے یزیدی کہتے ہیں. جو حسینی ہے وہ مومن ہے, جو باہر ہے وہ غیر مومن ہے. جو حسینی ہے وہ مومن ہے, جو باہر ہے علم کے سائے کے نیچے نہیں ہے وہ غیر مومن ہے. تو ان 10 دنوں میں کم از کم ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے مطہر شاہی جس میں صرف مولا عباس کا ذکر کیا جائے. کم از کم ایک پوری مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں صرف حضرت عباس کے فضائل اور مسائل پڑھے جائیں. مسائل تو سبھی سنتے ہو کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بس بہادر ہے حضرت عباس, کوئی شک نہیں اس میں, بہت بڑے شجاع ہے حضرت عباس, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے. لیکن میں آج چند لوگوں کے درمیان میں حضرت عباس کا علم بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے. میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ یہ مجلس حسین بندوں کی محتاج نہیں ہوتی. ایک بندہ پڑھنے والا اور ایک سننے والا ہو بس کافی ہوتا ہے, اور آپ تو کافی بیٹھے ہو. اور مجھے امید ہے کہ اس صفحے ماتم کی منظوری اتنی ہے کہ معصومین ہوتا ہے, میرا ایمان ہے اس بات. اور جہاں پر اسپیشلی مولا عباس کے حوالے سے ذکر کیا جائے وہاں پر تمہارے امام 4 تشریف لے کر یہ خوشنودی امام زمانہ باز بلند بس 2-4 جملے تمہیدی اور اس کے بعد بات کو آیت پڑھی ہے میں نے سورہ مبارکہ زمر سے. بظاہر خطاب کیا ہے اللہ نے اپنے رسول سے, لفظ یہی آ رکھے
लाइन अशरकता ला यखबतन अमलका, कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे। आयतें मेरी मर्जी से तो नहीं उतरती, लफ्ज भी यही है और लफ्जी तर्जमा भी यही है, और खिताब है रसूल से कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे। जानता हूं मैं भी इस हकीकत को कि रसूल और माज़अल्लाह शिर्क, जो शिर्क के अंधेरों को रोशनी अता करने आया हो, वो भला शिर्क क्या करे? वो भला शिर्क कैसे कर सकता है? लेकिन आयत के लफ्ज यही है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे। तो जब तफसीर अहले बैत को देखा तो अल्लामा रजब अली मुर्सी, बहुत बड़ा नाम है इस बंदे का, मज़हब अहले बैत में 813 हिजरी में इस बंदे का इंतकाल हुआ। 750 साल से ज्यादा पुरानी किताब मिशारे को अनवार यकीन फी हकायक असरार अमीर अल मोमिनीन में अल्लामा रजब अली मुर्सी तफसीर लिख रहे हैं इस आयत की। मैं तुम्हारी इंतजार ही खत्म करने लगा हूँ। तफसीर लिखते हुए फरमाते हैं कि मैं भी इस हकीकत को जानता हूँ कि रसूल और माज़अल्लाह शिर्क, जो शिर्क को रोशनी दे, वो भला शिर्क कैसे कर सकता है? तो फिर इसके कहने का मकसद क्या है? अल्लामा रजब अली मुर्सी फरमाते हैं कि अल्लाह के कहने का मकसद ये है कि या मोहम्मद इन सावैत बि अलीयन अहदन मिन उम्मतिका और जअलत लहु मसलन और शबहन फला अम्र लगा, कि ऐ मेरे हबीब, अगर अपनी पूरी उम्मत में से किसी को अली जैसा समझा अगर किसी को मसावे किया अली के, अगर किसी ने अपने आप को अली जैसा कहा या किसी ने अली को अपनी शबी कहा तो तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे। आपके नारे सुन के मुझ में एक जुर्रत पैदा जरूर होगी कि मैं अल्लाह से बात करते हुए अकेला नहीं हूं, आप आओ मेरा साथ दो कि अपने हबीब को तो वो इजाजत नहीं देता कि वो लफ्जों में किसी को अली की शबी कहे, अब्बास को अली की हकीकी शबी बना। अपने हबीब को तो लफ्जों में इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अली की शबी कहे। और रसूल की उम्मत में फकत आप नहीं हो, आदम भी रसूल की उम्मत में है, ईसा भी रसूल की उम्मत में है, मूसा भी रसूल की उम्मत में है, यकूब और यूसुफ भी रसूल की उम्मत में है, 1.25 लाख नबी रसूल की उम्मत में है। और नबी को इजाजत नहीं देता कि लफ्जों में किसी को अली की शबी कहे, और खुद अब्बास को अली की हकीकी शबी बना के उतारा, हकीकी शबी बना दिया। और ये क्यों है शबी? चलो मैं एक और आयत पढ़ता हूँ सूरह मुबारक फातिर से। फलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, फरमाया अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं होती, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं होती। और मौलवी साहिबान ने इसका तर्जुमा ये कर दिया, आयन, तरीका, रविश, कानून। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो लुगत होता है वो लुगत ही होता है, वो न शिया होता है न सुन्नी, न मुकस्सर होता है न गाली, वो बस लुगत ही होता है, वो तर्जमा बताता है। तो जब लुगत की किताबों को देखा, आप भी तहकीक करना, उलमा लुगत से पूछना, तो सुन्नत के पता है क्या मानी मिले? तरीका भी था, रविश भी था, आयन भी था, कानून भी था, लेकिन बात हलक से नीचे नहीं उतर रही थी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। फिर देखते देखते कि सुन्नत का ऐसा मतलब देखा, 1 लाख चांद रोशन हो गए मेरे दिमाग में। सुन्नत का एक मतलब लिखा है लुगत में, चेहरा। सुन्नत का एक मतलब लिखा है लुगत वालों ने, चेहरा। फलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में हरगिज हरगिज तब्दीली नहीं आती, वो एक जैसा रहता है, चाहे अली के रूप में हो या अब्बास की। वो एक जैसा रहता है।
अली के रूप में आए या अब्बास की शक्ल में, और ये हम मांगते हैं मौला अली से। उस घराने में मौला अली से मांगा नहीं जाता, मौला अली को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हदीस रसूल है कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं अली की सुल्ह से। हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। तो अब रसूल ने अली से क्या कहा? अब मांगा तो नहीं रसूल ने अली से कि अली मैं तुझसे मांगता हूँ, फरमाया मैं आजिज़ नहीं हूँ, जरा अपनी सुल्ह उधार दे मुझे 2 बेटे चाहिए। तो रसूल ने लिए हसन और हुसैन, और उधर बतूल की बात फरमाया या अली मर्द का हिस्सा दुगना होता है, मुझे भी एक बेटा चाहिए, अपनी सुल्ह जरा उधार दे। तो बेटा लिया अब्बास की शक्ल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पानी का गिलास मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो हक यही बनता है कि मैं यहाँ से गिलास उठा लूँ। अब मैं यूं जाऊं पहले और फिर यहाँ से आके गिलास उठाऊं, तो बात तो एक ही है, उठाया तो मैंने पानी का गिलास ही है, लेकिन यहाँ से उठाना आसान है। ये ऐसा क्यों है? अगर रसूल को 2 बेटे चाहिए तो फिर रसूल की अपनी सुल्ह से क्यों नहीं? और अगर बतूल को बेटा चाहिए तो बतूल के अपने बतन तहर से क्यों नहीं? उसकी एक वजह है, जाओ तहकीक करना किताबों में। अगर हसन और हुसैन रसूल की सुल्ह से होते तो दोनों का नबी होना वाजिब था। नबी होना वाजिब था। और अगर अब्बास बतूल के बतन अतहर से होता तो इमाम होना वाजिब था। अब रसूलुल्लाह के बाद अल्लाह को और नबी को ही नहीं चाहिए, और 13वां इमाम भी अल्लाह को नहीं बनाना। तो इसलिए बीबी ने कहा कि अब्बास मेरा बेटा है अली की सुल्ह से। शबी है। क्यों शबी है? तो फिर पहले ये देखना पड़ेगा कि अली का वजूद क्यों है। अली तो जली के लिए था ना, इसीलिए तो कहा कि तू जुबान है मेरी, तू हाथ है मेरा, तू कान है मेरा, तू नफ्स है मेरा, कि देखूंगा तेरे जरिए, तू आंख है मेरी, मखलूक की सुनूंगा तेरे जरिए, तू कान है मेरा, मखलूक को दूंगा तेरे जरिए, तू हाथ है मेरा। और फिर अपने किसी मकसद के तहत अपने हबीब को जमीन पर भेज दिया। मुहालफत का तूफान उठ खड़ा हुआ, लोग बात नहीं मान रहे, रसूल तबलीग करते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, फरमाया परवरदिगार दीन तेरा फैलाने आया हूं, लोग मुहालफत कर रहे हैं, अब तेरी मदद के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आवाज़े कुदरत आई, मेरा हबीब मुझसे मदद नहीं मददगार मांग, मुझसे मददगार मांग। पढ़ना कुरान, यही लफ्ज़ है, कुर रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। फरमाया कह दीजिए कि मुझे सच्चाई के साथ दाखिल करो और बाहर निकालो साथ सच्चाई के। वजअल तू बना ली मेरे लिए मिन लदुनका अपनी तरफ से एक ताकतवर मददगार। और ये फकत शिया तफसीर ही नहीं, अहले सुन्नत की तफसीर भी इस बात की गवाही देती है कि सुल्तानुन नसीरा से मुराद अली है। सुल्तान नसीरा से मुराद अली है। तो अब यहाँ पर देखना, जो अल्लाह अपने हबीब की मदद के लिए खुद नहीं आता, मददगार भेजता है, वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। मेरा हबीब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई बदन रखता हूँ? अगर मैं बदन रखता तो मुझे तेरी इज्जत की कसम है मैं खुद आता, मैंने अज़ल से अपनी तस्वीर के सांचे में ढाल कर जमीन पर अली को उतार दिया। वार तुझ पे उठेगा, सीना अली आगे करेगा, तू ये सोच कर इत्मीनान में रहना, वो ना सही उसका बदन तो लड़ रहा है। पूरी कोशिश है जो पैगाम में लेके आए वो आप लोगों तक पहुंचे।
तो मदद नहीं भेजी, मददगार भेजा। और अब बहुत सारे मीनिंग सुल्तान के, लेकिन मेरा मौजू नहीं, मैं सिर्फ 2 मीनिंग आपको बताता हूँ, 2 मीनिंग्स सुल्तान के। सल्तनत से ये लफ्ज निकला है, सल्तनत से यानी तसल्लुत से, यानी मिसाल के तौर पे ये अंगूठी मेरे पास है लेकिन मेरे तसल्लुत में नहीं है, अब मेरे तसल्लुत में है। तो जो कुछ अल्लाह के पास है, जो अपनी मुट्ठी में यूं बंद रखे उसे सुल्तान कहते हैं। क्या कहने बाबा, जो अपनी मुट्ठी में यूं बंद रखे उसे सुल्तान कहते हैं। और ये तुम्हारे मौला का फरमान भी है कि अली इतनी बड़ी नेमत है कि अली का मौला भी जब तक मांगे नहीं मिलती नहीं। अली के मौला को भी मांगना पड़ती है। और दूसरा तर्जमा सुल्तान का आयत है सूरह अंबार का रहमान में, चैलेंज किया है अल्लाह ने जिन और इंसानों को, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातु अन तनफुजु मिन इक़तार समावाति वल अर्ज़ फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान। फरमाया ऐ जिन्नों और इंसानों, अगर तुम कुदरत रखते हो, अगर तुम ताकत रखते हो, तो मेरे जमीन और आसमान के किनारों को फाड़ कर बाहर निकल जाओ। फनफुजु, निकलो भी, ला तनफुजुना, तुम्हारी क्या जुर्रत कि तुम निकल सको, इल्ला बे सुल्तान, अगर सुल्तान का दामन पकड़ लो तो वो तुम्हें निकाल मेरा मौजूद नहीं शादी, मैं हवा के जोगे, मुझे नहीं क्या कह रहे हैं, कौन समझा है मेरी बात को? मुझे इसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं, मेरे सामने सारे शिया बैठे हैं, अगर कोई गैर मतलब बैठा होता तो मैं इसकी तफसीर जरूर करता। फरमाया अगर सुल्तान का दामन पकड़ लो तो वो तुम्हें निकाल सकता है। तो अब्बास शबी है अली की, अब्बास मौजूद है मेरे, अब्बास शबी है अली की। और अब दोनों के अली का वजूद क्यों है, दोनों के रिश्ते की कड़ी देखना। अभी भी तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मोहम्मद मुस्तफा को दीन फैलाना था तो वजहुल्लाह आया मुहाफिज बनकर, यानी मदीने में, मक्के में दीन फैलाना था तो वजहुल्लाह आया मुहाफिज बनकर, करबला में दीन बचाना था तो वजहुल्लाह आया। और दोनों के रिश्ते की कड़ी है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये दोनों तकूने मिली हुई, एक तकून की हिफाजत के लिए अली वजहुल्लाह बन के आया, दूसरी तकून की हिफाजत के लिए अब्बास वजहुल्लाह बन के आया। तो मुझे नहीं पता, मैं एक लफ्ज कहता हूं, अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में कहीं पर नहीं है। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा तो मुझे जरूर बताना, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। कहीं अल्लाह ने यह कहा हो कि मुझे कसम है आदम की, मुझे कसम है इब्राहिम की, मुझे कसम है नूह की, मुझे कसम है मूसा ईसा की। पूरे कुरान में किसी नबी की अल्लाह ने कसम नहीं खाई। मेरा साथ दो ना, मैं उससे पूछूं जरा कि आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की तो कसम खाता नहीं, अली के दुल्दुल की कसम क्यों खाई? सवा लाख नबियों को तो इस काबिल समझता नहीं, अली के दुल्दुल की कसम क्यों खाई है? नहीं खाई। ज़बन क्या है? और फकत दुल्दुल की नहीं, उसके सुमों से निकलती हुई चिंगारियों पढ़ने से पहले मैं ये सोच रहा था कि सारे बंदे सारा दिन सिटी में जुलूस से थके हुए आए हैं और ये बिल्कुल चुप करके बैठे रहेंगे, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में पढ़ने की आदत ही नहीं है। तवज्जो करना, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की कसम नहीं खाई, अली के दुल्दुल की कसम खाई, और फकत दुल्दुल की नहीं,
اس کی سموں سے نکلتی ہی چنگاریوں کی قسم. اور پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ جب وہ پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے اپنے نتنوں سے سانس لے کے پھنکارتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پھنکارنے کی قسم, مجھے پھنکارنے کی قسم. تو جو اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو علی کے دلدل کے برابر نہیں تولتا, وہ باس کو کہاں تولے گا؟ کجا آدم, کجا علی کا دلدار, کجا علی کا جانور اور کجا علی کی آرزو. میں ایک اور جملہ کہتا ہوں, توجہ کرنا. اب اگر کسی کا سینہ پھٹ جائے تو تعجب نہ کرنا, دیکھنا میری طرف اور لوح دل پر لکھنا. علی وہ بادشاہ ہے جو اپنے ہاتھ کی 2 جنبشیں بھیک میں دے دے تو اللہ کی دھرتی بیٹوں سے بھر جاتی ہے. غلط کہا میں؟ علی وہ عظمت کا مالک ہے کہ ہاتھ کی 2 جنبشیں بھیک میں دے دے تو اللہ کی دھرتی کو پر کر دے. فرمان نہیں تمہارے مولا کا, ہم مرت تینت آدم بجدائے 40 صباحن کہ 40 دن تک آدم کی مٹی کو میں علی نے اپنے ہاتھوں سے خمیر کیا, اور اگر مٹی خمیر نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے, اور اگر آدم نہ ہوتے تو زمین پر آدمیت کا تصور نہ ہوتا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علی جو اپنے ہاتھ کی 2 جنبشیں بھیک میں دے دے تو اللہ کی دھرتی بیٹوں سے بھر جاتی ہے. پتہ نہیں کتنی دیر تک عباس کی آرزو میں رہا. عباس کی آرزو میں رہا ہے, کیونکہ بھری پڑی ہے کتابیں. خدا کی قسم کہ جناب عقیل کو پاس بلایا کہ تم شجار عرب ہو, میں چاہتا ہوں کہ عرب کے کسی شجاع ترین جوہر عصمت خاتون کا رشتہ تلاش کرو. تو جناب عقیل نے فرمایا مولا آپ ڈھلتی عمر میں شادی کریں گے؟ فرمایا شادی ہماری دنیاوی ضرورت نہیں ہوتی, اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس میں سے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کا قوت بازو, جو میرے حسین کا قوت بازو ہو. علی بننا تو آدم کے بس کی بات نہیں ہے, علی بننا موسیٰ و عیسیٰ کا مقدر نہیں ہے, لیکن جو وہ کیا کہتے ہیں سپوت بیٹے ہوتے ہیں نا, وہ کسی نہ کسی طریقے باپ سے ایک قدم آگے بڑھاتے ضرور ہے. علی بننا کسی کے بس کا کام نہیں ہے. پڑھنا بشارت المصطفیٰ, علامہ طبری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں, رسول فرماتے ہیں, یا علی انت نجم بنی ہاشم, یا علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے, یا علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے. عباس نے قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہا بابا تیری دعا سے کمرے بنی ہاشم بن کے نہ دکھایا, بابا تیری دعا سے کمرے بنی ہاشم بن کے دکھاؤں گا. میں یہ کہتا ہوں عباس کروڑ دفعہ دنیا میں آئے, علی جیسا نہیں ہو سکتا. عباس کروڑ دفعہ پیدا ہو, میرے لفظوں کو سننا, عباس کروڑ دفعہ پیدا ہو لیکن علی جیسا نہیں ہو سکتا. 2 چیزوں میں عباس علی سے آگے بڑھ گیا ہے. پہلی یہ تھی یا علی انت نجم بنی ہاشم, تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے, عباس کمرے بنی ہاشم. اور دوسرا رسول فرماتے ہیں یا علی انت ذوالفضل, تو فضائل والا ہے. عباس نے قدم چوم کر کہا بابا تیری دعا سے ابو الفضل بن کے نہ دکھایا. اور آؤ میں آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں. پرائمری پاس قسم کے مولوی کہتے ہیں, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, پرائمری پاس قسم کے مولوی کہتے ہیں کہ چونکہ بیٹا تھا فضل اس لیے کنیت ہے ابو الفضل. جاؤ میرا چیلنج ہے, مجلس ہوگی وہاں پر جو عالم دین آئے ہیں ان سے بھی پوچھنا, تحقیق بھی کرنا. عرب والوں کی یہ عادت ہے کہ اگر کنیت بنانا ہو تو بڑے بیٹے کے نام پہ بناتے ہیں. جیسے سرکار عمران کی ابو طالب, مولا علی کی ابو الحسن, تو سرکار عباس کے بڑے بیٹے کا نام تو محمد ہے. تو اگر کنیت بنانا ہوتی تو پھر ابو محمد ہوتا.
मुझे कसम है रब्बे काबा की, अगर अपनी तरफ से कहूं तो हुसैन मुझे अपने अज़ादार न कहे। पहले दिन जब ये कुरान वफा, जब ये मसजूद वफा सरकार उम्मुल बनीन की आगोश इस्मत के राहन में उतरा, उसी वक्त अली ने हाथों पे उठाकर कहा अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल। तो ये है मर्तबा हजरत अब्बास का। उसी वक्त मौला ने अपने हाथों पे उठा के कहा था अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल। और ये चलो मैं आपको 2 शेर और सुना देता हूं। शायर कहता है दहके हुए दोज़ख को बुझा देते हैं अब्बास, दहके हुए दोज़ख को बुझा देते हैं अब्बास, बंदे को भी खालिक से छुड़ा लेते हैं। दहके हुए दोज़ख को बुझा देते हैं अब्बास, बंदे को भी खालिक से छुड़ा लेते हैं अब्बास। और आप यही सोच रहे हो ना कि अगर तकदीर में ना लिखा हो तो फिर अब्बास क्या करता है। मैं बताना यही चाहता हूं कि अगर तकदीर में ना लिखा हो तो अब्बास करता क्या है। दहके हुए दोज़ख को बुझा देते हैं अब्बास, बंदे को भी खालिक से छुड़ा लेते हैं अब्बास, और जब कुछ देने की सरहद पे आ लेते हैं अब्बास, फिर लोहो कलम और बना लेते हैं। फिर लोहो कलम और बना देते हैं अब्बास। और वो फरमाते हैं हैदर की दुआओं का समर होता है अब्बास, अकबर भी खड़ा हो तो कमर होता है। हैदर की दुआओं का समर होता है अब्बास, और अकबर भी खड़ा हो तो कमर होता है अब्बास। मुझे 2 मिनट और दे दो, थोड़ा सा मैं और मौला के फज़ाइल पढ़ लूं। मसाइब में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। 2 बंदा और 2 शख्स थे, दोनों खुदाए सुखन थे, और आज तक नाकाज़ाने फन इस बात का ज़ोहिर फैसला ही नहीं कर सके कि इनमें से 19 कौन था और 20 कौन था। ये तो सब कोई जानता है, हर कोई जानता है कि 19 कौन था और 20 कौन था, लेकिन मैंने कहा कि ये कोई नहीं जानता कि 19 कौन था और 20 कौन था। और दोनों के कलाम पे मोहर लगती थी। और अब जो बात मैं आपको 2 सुनाने लगा हूं, ये है मिर्जा दब्बीर के। दोनों अपना अपना कलाम लिख के नजफ चले गए, तो सरकार दब्बीर के कलाम पे मोहर लग गई। मीर उन्नीस परेशान हुए, हाथ में मौला अमीरुल मोमिनीन मिले, फरमाया बेटा तू तो मेरा अपना है, अगर उसके कलाम पे मोहर न लगा था तो उसका दिल टूट जाता, तो तुम्हारे कलाम पे भी मोहर लगा देते हैं। तो दोनों मोहर याफ्ता थे। आप अगर गलत लिखा तो मौला अली से पूछना कि गलत कलाम पे क्यों मोहर मारी थी। खुदाए सुखन मिर्जा दब्बीर हजरत अब्बास के हवाले से मैदान करबला में नक्श निगारी कर रहे हैं कि मौला अब्बास घोड़े पर सवार। वो फरमाते उंगली से लिख के गर्दने तौसन पे याद। तौसन कहते हैं घोड़े को। उंगली से लिख के गर्दने तौसन पे याली। लिखा क्यों? हम जैसे जहलों को ये पैगाम दिया है अब्बास ने कि मैं बाबुल हवाइज हूं, मेरा गुजारा अली के बगैर नहीं, तुम्हारा कैसे हो सकता है। वो फरमाते हैं उंगली से लिख के गर्दने तौसन पे याली, एक जुस्त में सवार हुआ हक का वो वली। फिल फौर तूरो नूर के मानी हुए जली, और बिजली जलाना भूल के खुद रश्क से जली। वो फरमाते ठंडी हुई हवा जो ये घर में इना हुआ, और सर की सांस रुक गई जो ये रवा। ठंडी हुई हवा जो ये घर में इना हुआ, और सर की सांस रुक गई जो ये रवा हुआ। अब मिर्जा दब्बीर कहते हैं मैंने ज़हन में सोचा, तसव्वुर में मैंने सोचा कि अब्बास के घोड़े की भी तारीफ करूं। तो मिर्जा दब्बीर फरमाते हैं रखने लगा जो हाथ तसव्वुर हिनान पर, बिगड़ा बना के मुंह के न खेल अपनी जान पर। बोली ज़मीं किधर? तो कहा आसमान पर। पूछा जो आसमान से, तो कहा लामकान। बोली ज़मीं किधर? तो कहा आसमान पर। पूछा जो आसमां से, तो कहा लामकान पर। वो फरमाते ये कह के फिक्रो वहम की हद से गुजर गया,
साया हवा से पूछ रहा था किधर गया। साया हवा से पूछ रहा था किधर गया। अभी का कोई आम बेटा नहीं है अब्बास। क्या कहने क्योंकि यही तो वजह है कि 1 एकड़ का ही फासला है ना करबला में। 1 एकड़ के फासले पे मौला हुसैन का रोजा है और 1 एकड़ के फासले पे हजरत अब्बास का रोजा है। तो अब 1 एकड़ के फासले पर हुसैन जैसे अजीम इमाम की मौजूदगी में बाबुल ख्वाजा मौला हुसैन जैसे अजीम इमाम की मौजूदगी में बाबुल ख्वाजा और ये वाकया करबला कोई हादसा नहीं है कि 2 लश्कर जा रहे थे और मैदान करबला में जंग हो गई और एक लश्कर मारा गया। ये कोई हादसा नहीं है, ये अज़ल से तयशुदा बात है। ये मुआहदा है मजलूम करबला का अल्लाह के साथ। और जब ये मुआहदा तय पाया है ना, जब तय पा गया तो मजलूम करबला ने अपनी तरफ से एक फरिश्त बना के दी कि परवरदिगार ये 72 मेरे होंगे, ये मेरा साथ देंगे। अब नामों पे जब निगाह पड़ी ना, तो जब अब्बास के नाम पर निगाह पड़ी ना, तो आवाज़ कुदरत हुसैन अब्बास भी करबला में होंगे। फरमाया जी मेरा मालिक अब्बास भी करबला में होंगे। तो फिर आवाज़ कुदरत हुसैन एक मुआहदा और करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अगर अब्बास करबला में लड़ेगा तो फिर तारीख करबला किसी और रंग में पड़ी जाएगी। फिर तारीख करबला ऐसे नहीं पड़ी जाएगी। फरमाया बोल मेरे मालिक क्या मुआहदा चाहिए। कहा हुसैन अगर अब्बास करबला में होंगे तो फिर ये भी मुआहदा करना पड़ेगा कि अब्बास को अपने बाजू कतल करवाने पड़ेंगे, अब्बास को अपने बाजू कटवाने पड़ेंगे। अब सोचा मजलूम करबला में, अभी सोच ही रहे थे तो अब्बास के नूर ने आगे बढ़ के कदमों को चूम कर कहा कि मौला आप वादा कर दीजिए कि मैं अपने बाजू भी कटवा दूंगा, लेकिन सिला क्या मिलेगा। जब कहा ना सिला क्या मिलेगा, आवाज़ कुदरत इससे बढ़कर और सिला क्या होगा कि पूरी दुनिया में बगैर हाथों के एक मेरी हुकूमत होगी, दूसरी तेरी। अल्लाह पता नहीं अब्बास के घिरने में राज क्या था कि हुसैन जैसा इमाम जो अकबर के लाशे पर नहीं कहा, जिसने अकबर के लाशे पर चुप रहे हैं हुसैन, अब्बास के गिरने में पता नहीं राज क्या था। कमर पर हाथ रख के फरमाते हैं अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अब्बास मेरी कमर टूट गई है। सारा दिन तुम्हारा इमाम लाशें उठाता रहा है, हुसैन के मुंह से ये नहीं निकला मेरे। जब अब्बास मैदान करबला में गिरे हैं ना, तो फिर मजलूम ने इमाम उतार कर जमीन पर फेंका है और आवाज देके कहते हैं अब्बास अब मैं गरीब, अब्बास अब मैं गरीब हूँ। तो 1400 साल बाद आज मौला अब्बास के मसाइब सुन के रो रहे हैं। पहला लोहा जो मजलूम करबला ने मौला अब्बास के लाशे पर पड़ा, पता है वो क्या था। अब दूर से देखना बात समझ में आ गई तो कब्र में भी रोने का इच्छा हुई। दूर से मजलूम करबला ने लाशे की हालत देखी, इमाम उतार कर जमीन पर फेंका, सीने पर हाथ मारा, सीने पर हाथ मारते हुए आगे बढ़े और एक नोहा पड़ा मजलूम करबला ने कि अब्बास आज तेरे जाने के बाद, अब्बास कल तक जो आंखें तेरे डर से कभी सोती नहीं थी, अब्बास तेरे डर से कल तक शामी सोते नहीं थे, आज के बाद वो आंखें चैन से सोएगी जो तेरे डर से कभी सोया नहीं करती थी। अब्बास आज के बाद ना मेरी सकीना सोएगी,
इमामा ने उतारा, बस आखिरी हकीकत सुनो। अकबर के लाशे पर इमामा उतार के जमीन पर नहीं फेंका, मौला अब्बास के लाशे पर क्यों उतारा इमामा? इसलिए कि हुसैन ने दूर से लाशे की वो हालत देखी कि इमामा उतार के जमीन पर फेंकने पर मजबूर हो गए। तुम्हें यही सुनाया जाता है ना, पढ़ने वाले तुम्हारे डर से नहीं पढ़ते कि कहीं कोई मोमिन मर ना जाए। अगर समझ लो तो तुम्हें यही पता है ना कि जहां से हाथ काटे गए थे, किताब के लफ्ज यही है, गाते हो इजराए, बकाते हो इजराए। लाशे की हालत ऐसी नहीं देखी। अब रोते रोते करीब आए, करीब आके कहा, अब्बास मुझे बता, मैं तेरा लाशा अब्बास मेरी सकीना मर जाएगी, अब्बास मेरी सकीना मर जाएगी। आपने कहा ना मर जाएगी, कहा ना मर जाएगी। बोला अब्बास मौला ना ले जाओ मेरा लाशा है में, ना ले जाओ मेरा लाशा है में। अब उठे हुसैन, मशकोर अलाम को गले से लगाया, खैमों की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे सारा दिन कोई मजदूरी करके घर वापस आता है, खैमे की तरफ बढ़ना शुरू किया। खैमे के दर पर 4 साल की मासूमा खड़ी है। बाप को आते हुए देखा, दरवाजे पर कुछ नहीं पूछा। हुसैन खैमे में दाखिल हुए, मट्टी पर बैठे, इशारे में बहन से कोई बात की, मासूमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, बाबा के करीब आई, आके कहा बाबा मेरा चचा अब्बास नहीं आया, बाबा मेरा चचा अब्बास नहीं आया। बेटी तुम्हारा चचा मारा गया। अब जो कहा ना मारा गया, लोग कहती मारा तो मेरा अकबर भी गया था, लेकिन अकबर का लाशा तो है में आया था, मेरे चचा की लाश क्यों नहीं आई? अब हुसैन ने देखा, एक लफ्ज सुन लो, हुसैन ने देखा अगर मैंने बता दिया तो बच्ची मर जाएगी, अगर मैंने बता दिया कि लाशे की हालत क्या है तो बेटी मर जाएगी। रोके कहते बेटी तुम्हारा चचा कड़ियल जवान है,